Hello everyone, welcome to next lecture on ordinary differential equation. In this lecture, we are going to discuss order of differential equation, degree of differential equation and some important examples. Now see, this topic is very important and और degree and order ये topic is है, लेकिन some questions ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे हमें confusion हो सकता है कि what is degree और how to find the degree and order of differential equation. So we first see the definition of order and degree of differential equation and then we see some examples. So let's start with the definition. What is order of differential equation? Order of differential equation is the order of highest order derivatives involved in the differential equation is called the order of differential equation. For example, suppose here d square y by dx square plus dy by dx plus y equals to 0. In the last lecture, I have already told you here if we are differentiating y with respect to x, then y is our dependent variable and x is independent variable. Now see, in this example, we are differentiating y in first term twice and in second term contain single derivative of y. So now see here, our definition says that the order of the highest order derivative involved in the differential equation is called order of differential equation. So here हमने यहाँ पे second order derivative लिया है y का और यहाँ पे first order derivative of y लिया है. तो यहाँ पे maximum हमने second order derivative लिया है. That means highest order जो differentiate किया है function y को ये है 2 times. So for this example, order of differential equation is 2. So for this differential equation, order of this differential equation is 2. Now next definition of degree of differential equation. मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जब हम डिग्री की बात करते हैं तब हम ऑलवेज क्या कहते हैं कि जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई एग्जिस्ट है उस टर्म का हाईएस्ट पावर चेक करो. मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये जो टर्म है इसका क्या पावर है वही हमारे लिए क्या बनता है, डिग्री. इस एग्जांपल के लिए ये कंसेप्ट अप्लीकेबल हो सकता है. जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है इस टर्म का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है 1. दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 1. बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स इसका पावर 1/2 रहता है या फिर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा. दैट इज़ 1/dy/dx गिवन रहेगा. तो ये सब अगर टर्म्स है तो वहाँ पे हम डिग्री डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते. सी हियर सम एग्जाम्पल्स में क्या होता है, सपोज वी हैव गिवन 1/dy/dx प्लस dy/dx प्लस x इक्वल्स टू 0. अब या इस एग्जांपल में देखो, अगर हम डेरिवेटिव देखते हैं हाईएस्ट कितने टाइम्स हमने डिफरेंट ऑर्डर यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर चेक करते हैं y का तो ये सिंगल 1 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट किया है. यहाँ पे भी सिंगल टाइम्स डिफ्रेंशिएट है y, यहाँ पे भी है. तो क्या हम यहाँ से डिग्री 1 कहेंगे क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इसका जो पावर है ये 1 है. दैट मीन्स डिग्री इज़ 1. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन सिर्फ इतना नहीं है कि तुम हाईएस्ट जहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सिर्फ पावर चेक करो और बता दो कि दैट इज़ अ डिग्री. नो, यहाँ पे क्या रहता है कंसेप्ट कि आपको कोई टर्म फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ये फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए. तो उन सब कंडीशंस को अगर देखते हैं डिग्री नहीं कहलाएगी. तो इसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये अगर हम dy/dx से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर प्लस x dy/dx. नाउ सी हियर, यहाँ से हमने जो फ्रैक्शन वाला टर्म है उसको हटा दिया है. ये जो टर्म है यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिग्री. तो हाईएस्ट कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया है इस टर्म में, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y और उसका हाईएस्ट पावर है 2. सो फॉर दिस एग्जांपल डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. The degree of differential equation is the degree of differential equation is the exponent of the highest derivative which occur in it after the differentiation of the equation has been
made free from the radicals and free from the fractions as far as the derivative are concerned. So ये हो जाएगी perfect definition. Now we say some important examples based on order and degree of differential equation. One by one we discuss this example. In all this example we have to find order and degree of differential equation. So now see, in the first example, the highest order derivative contained in this equation is 3. Here in first term the derivative of y is 3 times, in second term it is twice, and in the right hand side it contains only function of x. So in this complete equation it contains highest order derivative is this. So the order of this equation is 3. Order of this differential equation is 3 and degree, now see here, highest order अगर ये है तो इसका power जो है that is represented in degree, so it is 2. So degree of this differential equation is 2. So order is 3 and degree is 2. Now see, in second example again we have to find order and degree. Here in first term contain third derivative of y, in second term also contain third derivative of y. So the maximum highest derivative contained term in this differential equation is third order term. So the order of this differential equation is, order is 3. But what about degree? Now if we are talking about the degree, then degree is in the form of positive integer. Now see here, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिग्री. तो यहाँ पे हाईएस्ट, दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है? 3/2. बट ये 3/2 कैसा है? फ्रैक्शन के फॉर्म में, और डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में अगर रहती है तो इस फ्रैक्शन टर्म को हमें फर्स्टली सिंप्लीफाई करना होगा. सो हियर d3y/dx³ रेज़ टू पावर 2/3, और इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ तो इट इज़ माइनस d3y/dx³ रेज़ टू पावर 3/2. अब दोनों साइड में जो फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर है उसको हटाने के लिए इफ़ वी टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो 1/2 है वो हट जाएगा बट स्टिल 3 रिमेन रहेगा. तो नेक्स्ट टर्म में हम अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ से 3 हट जाएगा. तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, 6th पावर दोनों साइड से ले रहे हैं. सो दोनों साइड से अगर 6 पावर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इट इज़ ए d3y/dx³ रेज़ टू पावर 2/3 होल रेज़ टू पावर 6. So here it is 3 2s are 6, that means total power is 4. So in the next step we will get, it is a d3y/dx³ whole raised to the power 4 is equals to d3y/dx³ raised to the power 9. That means order of differential equation is 3 and highest power of this third order derivative term is 9. So the degree of this differential equation is 9. तो यहाँ से हमने पावर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था उसको सिंप्लीफाई करके इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. नाउ सी, इन द थर्ड एग्जांपल यहाँ पे अगेन हमें इन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, इस इंटीग्रल की टर्म को हटाना होगा. एंड वी नो दैट इफ़ वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर एट ए टाइम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वी गेट ओरिजिनल फंक्शन. नाउ डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर देन वी गेट d3y/dx³ प्लस y इज इक्वल्स टू सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सपोज इट इज c. तो यहाँ से इंटीग्रल हट गया है, तो नाउ देयरफॉर order of differential equation is 3 and degree is 1. So order is 3 because it contains highest order derivative is 3. So order is 3 and degree is 1. Now see the next example. This example is very important. Here it contains trigonometric function sine of d2y/dx² plus x is equals to y. Now here this differential equation contains
highest order derivative is 2. So if we are talking about the order, then order of this differential equation is 2. Now what about degree? अब डिग्री के लिए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो टर्म कंटेन है उसका पावर चाहिए, बट इन दिस एग्जांपल अगर हम पावर की बात करते हैं तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का पावर आप 1 नहीं बोल सकते. वाई? क्योंकि साइन ये एक्सपांड अगर करते हो सीरीज़ के फॉर्म में, तो साइन का सीरीज़ किस तरह से, साइन सीरीज इज sin x equals to x minus x cube by 3 factorial plus x raised to the power 5 by 5 factorial plus x raised to the power 7 by 7 factorial and so on. Now see here, if instead of x, if we write d square y by dx square, then this term will be d square y by dx square plus d square y by dx raised to the power 3 divided by 3 factorial. In the next term, the power is 5, 7. एंड द डेफिनेशन सेज दैट जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट पावर, बट यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर इंक्रीज होते जाएगा. दैट मीन्स डिग्री यहाँ पे क्या होगी, फिक्स नहीं रहेगी. ये अगर इस टर्म में 7 है तो नेक्स्ट टर्म में 9. ऐसे अगर हम इस सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग देखते हैं तो सो हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का हाईएस्ट पावर, तो ये हम यहाँ से सीरीज़ में बता नहीं सकते. ये अप टू इन्फिनिटी तक के जा रहा है टर्म. दैट मीन्स हियर for this example, sin x, if we expand this term, then we get it is d square y by dx square minus it is d square y by dx square raised to the power 3 divided by 3 factorial plus d square y by dx square raised to the power 5 divided by 5 factorial plus minus and so on plus x is equals to y. So for this example, order of this differential equation is 2 and degree does not exist. So from this example, it is clear that the degree may be infinity. So there is an important note, that is the order of differential equation is always exist, but the degree may or may not be exist. तो ज़रूरी नहीं है कि डिग्री ऑलवेज आपको कुछ फाइनाइट उस कांस्टेंट इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा. समटाइम्स डिग्री मे नॉट बी एग्जिस्ट बट ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट होगा. तो नाउ वी सी द फिफ्थ एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल इट आल्सो कंटेन इंटीग्रेशन, बट इंटीग्रेशन किसका है, फंक्शन ऑफ एक्स. इट कंटेन एनी फंक्शन ऑफ एक्स, और एनी फंक्शन ऑफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्स. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री और ऑर्डर, तो उसमें सिर्फ हम डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो वाई की टर्म के बारे में सोचते हैं. दैट मीन्स यहाँ से ये जो टर्म है इंटीग्रेशन है उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर देखते हैं तो इट कंटेन इंटीग्रेशन ऑफ वाई, तो आपको इस इंटीग्रल को हटाने के लिए वी आर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड और वी गेट डिग्री एंड ऑर्डर. बट यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हियर order is 2 and highest power of this term is 1, so degree is 1. The next differential equation is dy by dx plus sin x equals to y. Now here high order equals to 1 and degree is equals to 1. Next we discuss linear differential equation. Here a0 of x dny by dx raised to the power n plus a1 of x dn minus 1 y by dx raised to the power n minus 1 plus and so on a lower suffix n minus 1 dy by dx plus a n of x into y is equals to f of x. सी इस होल टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जितना डेरिवेटिव ऑफ y कंटेन है उन सभी का पावर कितना है, 1. ये जो है फर्स्ट, इसका अगर फर्स्ट टर्म के बारे में सोचते हैं तो ओनली फर्स्ट टर्म, तो इट कंटेन डी एन वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर n, that is a nth order derivative, and high power of this term is 1. That means for the first term degree is 1. If we are talking about the second term, so again it contain derivative of y and power is 1. So again for second term degree is 1. Up to this term dy by dx, again power is 1, so degree is 1. The whole term contain degree 1.
and in the next term it contains simply y, but again the power of y is 1, स्ट्रिक्टली 1. तो ये एक जनरल फॉर्म है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि आप वी कैन टेक एनी टर्म और रेस्ट टू पावर एनी, सपोज इट इज़ 3 4, नहीं, ये एक जनरल फॉर्म है. तो इन्होंने ये फिक्स करके दिया है. यहाँ पे डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, बट अगर इक्वेशन में y या फिर डेरिवेटिव ऑफ y वाला टर्म कंटेन है तो इसमें स्ट्रिक्टली पावर क्या होगा, 1. सो हर एक टर्म में अगर टर्म वाइज डिग्री की बात करते हैं y और डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये क्या है, 1 एंड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x. तो ये हो जाएगा हमारा मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगेन इफ यू ऑब्जर्व द सेकेंड थिंग, it does not contain any product of y or its derivative, for like that is यहाँ पे कोई y स्क्वेयर का टर्म नहीं है. मतलब यहाँ पे अगर y स्क्वेयर है तो y इंटू वाई दैट इज़ अ y स्क्वेयर. तो यहाँ पे y के साथ में y के फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ना तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है. तो y और उसका डेरिवेटिव ऐसा कोई भी प्रोडक्ट वाला टर्म इसमें कंटेन नहीं है ना. तो अगर इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो देन वी कैन कॉल इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. डिपेंडेंट वेरिएबल y and its various derivatives occur to be first degree only. तो यहाँ पे हर एक टर्म में क्या है, फर्स्ट डिग्री में. यहाँ y का डिग्री भी क्या है, 1. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नो प्रोडक्ट ऑफ y और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट. दैट इज, इसको भी जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था. कोई y स्क्वेयर का टर्म या फिर y इंटू डी वाई एनी पावर, वी कैन टेक डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू पावर n और डी वाई बाई डी एक्स रेस टू पावर 2. तो ऐसा कोई भी टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज no transcendental function of y and its derivative occurs. So in this differential equation transcendental function of y or its derivative present नहीं होना चाहिए. Now see here, what is transcendental function? Transcendental function किस फॉर्म में रहते हैं? अगर trigonometry here suppose sin y और cos dy by dx, तो trigonometric function या फिर log function that is log of 1 plus d raised to power n y by dx raised to power n. अदरवाइज e raised to पावर में अगर y कंटेन है या फिर e raised to पावर में dy by dx इस टाइप का कोई टर्म कंटेन है, तो ये होते हैं हमारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस. सो ऐसा कोई भी टर्म इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कंटेन नहीं होना चाहिए. तो ये अगर कंडीशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फुलफिल करता है तो देन वी कैन कॉल इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ we see the one example of transcendental equation. Now see in this example number 4, it contains sin of d square y by dx square plus x equals to y. So this equation contains trigonometric function, that's why this is not linear differential equation. So this is not linear differential equation. In the next lecture we discuss formation of differential equation. Thank you. Like, share and subscribe.